Welcome to our show, No Filter Cricket. Today, the topic is low totals that haunt Team India. Now, there is a recurring phenomena where India is concerned, and it has been endorsed by quite a few experts all over the world. And their point is that while India is a great team, undoubtedly tremendous bench strength, and in all three formats of the game, why is it that periodically India seems to deliver a turkey and of a string of low scores periodically, like the 36 at Gabba, and then the one of our lowest ODI scores at home against Australia, which became such a major talking point. But it's not just the low totals. There is something else which goes on behind the scenes, and what could be those factors? What are those factors that might be contributing towards this sudden plummet at times, and then the team again surfaces like a phoenix? So with me is my friend CS Luthra, who always has a very interesting point of view. Welcome to the show, CS. How are you doing? Thank you very much. So, CS, let's begin with this 117 total, which was India's third lowest score against Australia in ODIs. The previous two totals were 63 in 1981 and 100 in 2000, and they were both in Sydney. And this continued to be the lowest India totals versus Australia. Now, the point is, someone like Michael Clark, who made a telling remark that India does this pretty consistently. There'll be a string of good totals, then suddenly something happens and everything falls apart. Why do you think this happens? This used to happen, to England, if you remember, a few years back. I mean, a decade back, or so. That was the reason. That was actually the reason when the credibility or when the standards of county cricket was, coming down. That was the time when they were consistently, getting out on low scores, and also they were losing, a lot of one days or test matches. So what they did after that, what they did was to have a separate teams for different formats, and also tried and improve the quality of cricket by different means. It was not just by separating the teams, but also having a जो कहते हैं ना एक consistently they thought over it. उन्होंने pitches को सुधारा, उन्होंने जो कहते हैं अपने जो formatting था, जो different उनकी जो concentration थी for certain players, उसको सुधारा. And they came to a conclusion that having players for different formats is always better than having only a set of players who would be playing all the formats. So now India, Indian situation is a little bit different. Our domestic levels or domestic formats is doing pretty well. We are providing good wickets. In fact, for last 10 years or so, we have been providing wickets, obviously the fast wickets also at home, and also we have been persisting with the teams also, and also with the formats जहाँ पर domestic में आपको एक अच्छा challenge मिल सके. We invited Bangladesh, we invited couple of teams, and we have been playing India teams abroad, in order to improve our CS मैं जानता हूँ मैं आप इस डिस्कशन को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि हाल में आपकी तरह मैंने भी कुछ रणजी ट्रॉफी मैचेस देखे थे, और बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि कितनी कंपेटिटिव टीम्स हैं, लड़के कितने फिट हैं, उनकी क्या एबिलिटीज हैं, और ये सब देखने को मिला. ईरानी ट्रॉफी मैच भी एक शानदार मैच रहा. लेकिन आप जो कह रहे हैं, क्या हम लोग इस पे अब हमें अमल करना चाहिए कि इंडिया को तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग टीम्स, 3 अलग कप्तान, या चलिए 2 कप्तान, और ये कोचेस भी अलग अलग होने चाहिए? क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ग्रेट प्लेयर हैं अनडाउटेडली, लेकिन उनकी कोचिंग को लेके कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं. तो क्या वो वक्त आ गया है कि चाहे ओडीआई हो या T20 हो, इट नीड्स अ सेपरेट कोच आल्सो? व्हाट इज द वे आउट? देखिए, मैं हमेशा से इस बारे में एडवोकेट रहा हूं कि यू शुड हैव डिफरेंट प्लेयर्स, हॉर्सेस फॉर द कोचेस. और हमारे जो हॉर्सेस है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द sponsors, from the teams also, we are visiting the countries, कि ये couple of players has to be there. Virat Kohli, if you are going without Virat Kohli, or Rohit Sharma, or Hardik Pandya nowadays, or Dhoni before that,
उनके वो स्पॉन्सर्स या उनके वो जो कहते हैं आई बॉल्स नहीं मिलती। तो हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे हम बांग्लादेश या श्रीलंका जहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं अपने टॉप प्लेयर्स को, ऐसा नहीं होता है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। चाहे वो सौरव गांगुली के टाइम था, सचिन पर ये प्रेशर बहुत ज्यादा था, उनको सभी फॉर्मेट खेल रहे हैं, चाहे वो इनफैक्ट 2007 में अगर आपको याद हो कि जब हमारे जो टॉप प्लेयर्स वहां नहीं गए थे साउथ अफ्रीका, बिकॉज इट वाज ए काइंड ऑफ T20 कप, नॉट द T20 वर्ल्ड कप, लेकिन प्रेशर फ्रॉम द स्पॉन्सर्स एंड आल्सो आईपीएल, उसको हमने वर्ल्ड कप बना दिया। उसको इस तरह से ट्रीट किया गया था कि जैसे शुरू में तो लग रहा था कि छोटा कप है, बाद में उसको वर्ल्ड कप की तरह ट्रीट किया गया। खैर वो सब चीजें हैं, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है टेक्निकल इनएबिलिटी टू फेस द स्विंग बॉलिंग। जो सीम और स्विंग जो बॉल है, हम उसके अगेंस्ट इक्विप्ड नहीं है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हमारे पास पेस बॉलर्स अच्छे आ गए, हमारे पास शमी जैसा, बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन हम उस पर कंसिस्टेंटली उन विकेट्स पे उनको नहीं खिलाते। हमने फास्टर डोमेस्टिक विकेट्स तैयार की है, लाली में जैसे हरियाणा में हमारी बहुत ही अच्छी विकेट है। इनफैक्ट अगर आप वानखेड़े की विकेट देखें, ट्रेडिशनली स्विंग होती है वहां पर बॉल, क्योंकि लाल मिट्टी है, रेड सॉइल पर बहुत अच्छा बाउंस भी आता है। लेकिन हमने क्या किया है, whenever we play against the a top team, or when we try and go out, when we play abroad also, होता है क्या, सभी को एक आदत सी पड़ गई है कि एक पाटा विकेट दे दी जाए। जब आप पाटा विकेट पे खेलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यही होगी कि आपके पास कितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं या कितने भी अच्छे जो ऑपोजिशन बाहर वाले को हम चैलेंज कर सकते हैं, बट द सिचुएशन कम्स टू ए पॉइंट जहां आपकी बॉल ना तो ज्यादा स्विंग हो रही है, ना ज्यादा सीम कर रही है। वो विकेट एक एक पर्टिकुलर हाइट की विकेट रहेगी, वो एक पर्टिकुलर एक ऐसा फॉर्मेट से हम तैयार करेंगे कि वनडे हो या T20 हो या टेस्ट मैचेस हो, उसमें बैट्समैन हावी रहे। बहुत कम विकेट ऐसी मिलती है। सो व्हेन वी यू आर टॉकिंग अबाउट 36 रन वाला जो ऑल आउट हुए थे हम एडिलेट में, एडिलेट की बहुत ही अच्छी विकेट रहती है। ट्रेडिशनली जब हमारे बैट्समैन पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं रन नहीं करते, एडिलेट की वेट करते हैं और वहां पर जाकर के रन करते हैं। लेकिन क्या हुआ था, पिंक बॉल टेस्ट था, डे नाइट मैच था, और उसमें जाकर के जैसे ही बॉल स्विंग होनी शुरू हुई, थोड़ा सा वेदर उस तरह का हुआ और हम निकल गए। तो ये जो सिचुएशन है कि जब बॉल आपकी स्विंग हो रही है, इसका मतलब जो आपका जो मेंटल जो एबिलिटी है, नॉट द टेक्निकल, आई वुड स्टिल से हमारे बैट्समैन वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन मेंटली हम इस बात के आदी हो गए हैं कि हमारा जो कप्तान होगा विकेट से घास छिलवा देगा, वो प्रेशर डाल के विकेट को पाटा यस, बना देगा। एक पॉइंट ये भी उठता है, जैसे आपने 36 रन की बात करी थी, जिसमें जो हमारा सबसे लोएस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट स्कोर रहा है वो गैबा में इन ऑस्ट्रेलिया, वी वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 36 रन्स। तो उस एडिलेट नॉट गाबा, जी, एडिलेट। एडिलेड में तो वहां पे जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि एक तो है बुरी तरीके से आउट होना, और उसके बाद उसका एक सही तरीके से अप्रेजल करना। लेकिन इसमें सुनील गावस्कर, जो यूजुअली मैंने देखा है वो उनकी समीक्षा सही होती है, एंड ही डजंट शाय अवे फ्रॉम pretty honest assessment. His comment was a bit strange. He said maybe not, and I'm quoting him, maybe not all out for 36, maybe 72 or 80 to 90, but the way Hazelwood, Cummins bowled and the earlier 3 overs spell from Stark, they asked a lot of questions. So it's not fair to blame the Indian batsmen for the way they got out, because it was just simply superb bowling by the Australian bowlers. तो क्या सुनील गावस्कर साहब के जहन में वो पुराना ये जो इंग्लैंड का जो के खिलाफ लॉर्ड्स में 1974 में इंडिया वाज शॉट आउट 42, and it was then dubbed as the summer of 42 on the movie, तो कुछ वो यादें थी, because this is a pretty defensive statement coming from one of the greatest batsmen India has ever produced. You know, Mirko, I have a lot of respect for Sunil Gavaskar, but the problem is he's also in the panel, which is being selected or sponsored by BCCI. So he's an employee of BCCI. He tells you half truth and half he tries to hide because of certain limitations. That has been happening with everybody. Sanjay Manjrekar, if he comes up with one good statement, usko troll karna shuru kar dete hain हमारे जो क्रिकेट फैंस है, because they don't want to listen anything. It's just like the government of present times. Lot of trolling, but कोई सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है. The fact is, अगर आपको सुनील गावस्कर से ही आप पूछेंगे, उनके सबसे ग्रेटेस्ट पार्टनर शायद श्रीकांत या बाकी नहीं हुए,
अगर आप 75, 76, 78 का जो हमारे दौरे थे वहां के उस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप उस वक्त की बॉलिंग देखें, यू मस्ट हैव सीन दोज क्लिप्स, यूट्यूब में लोगों को देखने चाहिए किस तरह से बॉल कर रहे थे डेनिस लिली, लेन पास्को एंड थॉमसन। उनको खेलना अनप्लेबल था। इनफैक्ट लेनी पास्को जो उसमें थर्ड थे, लेकिन वो इतने डिफिकल्ट थे कि जब संदीप पाटिल के जब सेट पर लगी थी उसके बाद उन्होंने 155 किया। और गावस्कर की अपनी बुक में आइदर सनी डेज या दूसरी सब रन्स एंड ड्रॉइंग्स में ये लिखा हुआ है कि मैं कैसे छुप रहा था, मैं कैसे नॉन स्ट्राइकर से देखना अच्छा लग रहा था, मैं सिंगल नहीं ले रहा था। दैट वाज द काइंड ऑफ बॉलिंग और हॉस्टाइल बॉलिंग वहां थी। तो उसमें उनके जो सबसे ग्रेटेस्ट पार्टनर जो ऑल टाइम मुझे लगा वो चेतन चौहान थे। नॉट बिकॉज ही स्कोर्ड सम सेंचुरीज, ही डिडंट स्कोर एनी सेंचुरी, 90s में नर्वस 90s में आउट हो जाते थे, लेकिन फॉर हिज शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर गट्स टू स्टैंड देयर इन फ्रंट ऑफ 3 ग्रेट बॉलर्स और उस बॉल को पुराना करना था। तो आप जो 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 गावस्कर को जो शायद मुझे लगता है ये जरूर बताने की जरूरत थी, विराट कोहली या रोहित शर्मा या जितने भी, शुभमन गिल भी वहां खेल रहे थे, कि बॉस अगर आपको खेलना है लंबा तो आपको बॉल को छोड़ना सीखना पड़ेगा। आप आज की क्रिकेट की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम, जो जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि आप बॉल को खेलते बहुत ज्यादा है। और टेस्ट क्रिकेट में आप जितना बॉल को खेलेंगे, चाहे वो हेजलवुड हो, कमिंस हो, कोई भी बॉलर हो, वो जैसे ही आपको टेस्ट करने लगे हैं, अगर आपके वही 5-6 ओवर अगर आपने वेल लेफ्ट करके उसमें से आधी बॉलें निकाल ली होती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, उनका बॉलिंग का लेंथ ही चेंज हो जाता, उनकी लाइन चेंज हो जाती। बट द प्रॉब्लम इज नाउ ए डेज हम हर बॉल को खेलना चाहते हैं, हर बॉल को स्कोर करना चाहते हैं। तो चेतन चौहान ने जो किया था उस वक्त पे विदाउट हेलमेट, जब आप खड़े नहीं हो सकते थे उन पिचेस पे, छोड़ छोड़ कर उसको देखिए कभी जाकर 30-40 रन करते थे, लेकिन ग्रेट ओपनिंग पार्टनरशिप गावस्कर और उनके बीच की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप आपको दिखेगी। तो बिल्कुल सही प्रॉब्लम आपने लाइज। कहा। चेतन चौहान की बात आपने करी तो एक एनेक्डोट उनके बारे में ये याद आ रहा है कि शायद सनी गावस्कर ने ही कहा था कि वो और चेतन चौहान जब ओपन करने जाते थे लिली और टॉमसन के खिलाफ, तो चेतन चौहान एक गाना गुनगुनाते थे कि मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तो इससे नहीं ये पता चलता है, बट ट्रिमेंडस ब्रेवरी एंड ग्रेट फ्रॉम ओ चेतन यस, चौहान, who is not with us anymore, but what a brilliant, courageous व्हाट batsman. अ ब्रिल। और एक और चीज अरूप जो शायद आप टच नहीं कर पाएंगे, 2009 में मैंने एक स्टोरी किया था। आई वेंट टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो क्रिकेट इक्विपमेंट बना रहे थे। सो व्हाट दे हैव डन इन द इन लास्ट 15 इयर्स इज बिकॉज ऑफ आईपीएल प्रेशर। ऐसा तो था नहीं कि पहले के बैट्स, खैर आजकल के बैट्स में ज्यादा मीट होता है, ज्यादा बॉल को ज्यादा हिट कर सकते हैं, लेकिन आजकल के बैट्समैन उतने ग्रेट हिटर नहीं है जो क्लाइव लॉयड या विवियन रिचर्ड्स थे या गॉर्डन ग्रीनिस थे फॉर दैट मैटर। तो क्या प्रॉब्लम थी, जब जब मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, मैंने डिफरेंट रिची रिचर्डसन इनफैक्ट 2011 में जब आए थे वर्ल्ड कप में, उनसे बात हुई, बाकी लोगों से जब बात हुई, तो आई केम टू ए कंक्लूजन कि कुछ गलत हो रहा है इक्विपमेंट के साथ, गलत या अच्छा जो भी आप उसको उस तरह से लीजिए। जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे जो ये लोग जो बताते हैं जिनको क्रिकेट का सही नहीं मालूम, जो जो हमारे सो कॉल्ड आजकल फ्रॉम ललित मोदी टू आज प्रेजेंट डे के जो लोग क्रिकेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिन्होंने एक प्लेटर पर रखकर 100 ईयर ओल्ड गेम को प्राइवेट फ्रेंचाइजी को दे दिया है, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि क्रिकेट को आप फाइनली बर्बाद करने पर आ गए। आप क्रिकेट में इतने रन बनवाना चाहते हैं, आप दर्शकों को जोड़ना चाहते हैं, आप पैसा 7-7 हजार करोड़ की टीम बेचना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज आप अच्छी क्रिकेट नहीं परोसना चाहते हैं। तो उस सब में क्या हो रहा है कि जो बॉलर्स हैं, ऐसे ऐसे मौकों में ठीक है जब बॉल स्विंग हो रही है कुछ किसी दिन कर दिया, बट जनरली बॉलर्स को मार पड़ रही है। बैट्समैन डोमिनेटेड गेम ये होती जा रही है, और जहां पर भी बॉल घूमती है या स्पिन होती है वहां पर बैट्समैन धराशायी हो जाते हैं। तो गेम को एक एक सिंपली आपने कॉर्नर सा कर दिया और प्लेयर सेंट्रिक टीम बना दिया है। प्लेयर सेंट्रिक इस गेम को बनाते जा रहे हैं, स्टार्स पैदा कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। उस वक्त पे मैंने काफी इस पे रिसर्च कह लीजिए, जो भी पढ़ा लिखा, थोड़ा लोगों से मिला, तो पता चला कि इन्होंने ट्विक करना शुरू कर दिया इक्विपमेंट को। जैसे बॉल में अगर कोई भी क्रिकेट खेलता है, बॉल लेदर के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा कॉक, उसके ऊपर रस्सी को बांधा होता है पूरी तरह से, सो दैट वो सॉलिड बने, और उसको फिर सिल देते हैं, बहुत स्ट्रांग उसकी सिलाई होती है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी की, मैंने इनफैक्ट मैं मैन्युफैक्चरर्स के गया, मैंने कॉर्क दिखाया, वो स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ।
उन्होंने कॉर्क का साइज बढ़ा दिया, सो दैट बॉल ट्रेवल्स मोर इफ यू हिट दैट। इसीलिए आज आपको 84 मीटर्स का छक्का दिख रहा है, 100 मीटर का छक्का दिख रहा है। नॉर्मल ट्रेवल बॉल ज्यादा कर रही है। वो ट्रेवल इसलिए नहीं कर रही कोई विवियन रिचर्ड से ज्यादा आपके स्ट्रोक प्लेयर आ गया, आज कोई भी थोड़ा सा करता है और वो पता चलता है बॉल ट्रेवल कर रही। क्यों? कॉर्क का साइज बढ़ गया, बॉल इज ट्रेवलिंग मोर। दूसरा, इन्होंने बैट के साथ किया। बैट में पहले क्या होता था, एक बैट का अगर आप साइज देखें तो जो सेंटर, जो स्वीट पार्ट कहते हैं, वहां पर मीट बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि बैट ज्यादा बनते थे, थोड़ा इस तरह का था, उसको ज्यादा दबा करके, उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, हैमर करके उसको दबाया जाता था। आज जो है, जो जिस पार्ट से बैट के जो जो इंग्लिश फिलो का होता है, वहां पर उसको मीट को बड़ा कर दिया गया है। अगर आप देखें, बैट इतना चौड़ा आपका होना शुरू हो गया, उससे भी ट्रेवल ज्यादा कर रही है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो 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 फील्ड्स के साथ भी, जो फील्ड क्या मतलब कि जिस तरह से आपने बॉल गेम को ट्विक कर दिया है कि अब बॉलर सेंट्रिक बहुत कम हो गया और ये बैट्समैन सेंट्रिक हो गया। आपने बॉलर को बहुत कम लिमिटेशंस में बांध दिया है। ना तो ज्यादा वाइड कर सकता है, ना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। एक भी थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर उठाता है बॉल को वनडे या T20 में, तो उसको कॉल करना शुरू कर देते हैं। उससे बॉल को आपने ये सब गेम करना शुरू किया। जब मैंने उस बारे में, जब बीसीसीआई से बात किया, बाकी लोगों से, उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना, मुंह पर पट्टी लगा दी थी। ये बाकायदा मैंने इसको शो को एक किया था। उसके बाद से वो यूट्यूब से भी शो को उड़ा दिया गया। आज वो नहीं मिलता, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं मिलता। इट वॉज वन ऑफ द, मतलब कि जो मेरे दिल के करीब था कि आपने क्रिकेट को कैसे बर्बाद करने के लिए पूरा एक एक जो खांचा तैयार कर दिया है। Exactly, serious. तो ये Basically, सब you're कुछ, saying how technically the game has been tweaked to be यस, loaded in favor of the batsman to please the crowds, which come in droves. 50,000, 60,000 people come to see a T20 match, and then they like to see the sixes and the fours. They're not interested in the craft any longer. So you're absolutely right. The bats एब्सोल्युटली have become thicker, and like you said, the cork of the ball has also, as per your research, इंक्रीज been made bigger so that it can travel much more. फॉर आईपीएल मैचेस, फॉर ओनली फॉर आईपीएल मैचेस। Right. So let's come back to the point on the ODI, and since we are talking about some of our lowest scores, so statistically speaking, I have some figures before me, and let's run through it. So India's lowest totals at home in ODIs so far has been 76 against Sri Lanka, 100 against West Indies, 112 against Sri Lanka, 117 against Australia, which is the latest score in Vizag in 2023 this year, which happened just now. 135 against the West Indies and 135 again against Pakistan, which was played in Jaipur. My point is that when you're talking about ODIs, does this format now need tweaking? Because Ravi Shastri made an interesting point of late where he said that around the time when they won the 1983 World Cup, the ODIs used to be 60 overs apiece. Then it was reduced to 50 overs to increase its efficacy. And now he says the time has come where it should be capped at 40 overs. Otherwise, there is a lull in between where the game becomes stagnant. People lose interest. There is a certain amount of boredom. And that punch and the surge, which is there in T20, is not really there. First of all, there are two aspects here. One is when we are talking about the low scores, you've already covered the point about technique, that there need to be three different teams. First of all, horses for courses. But does the pitch play an important role? And when you're talking about low scores, and then when a procession begins, what happens in the mind of the batsman? Because I've heard enough experts say that when the top two get out, they always have a belief that there's someone else coming in, but that someone else should not be someone else. It should be you who should carry the responsibility forward. That used to be the traditional school of thinking. What is it now? Earlier, if you remember, till 4, 5, 6 years back, the most of the matches during the winters used to be happen around this part of the world. मतलब कि हमारे नॉर्थ में भी काफी मैचेस होते थे। अब लेटली अगर आप देखें, बहुत कम मैचेस होते हैं, ज्यादा साउथ में होते हैं और मे बी वेस्ट में ज्यादा होते हैं। उसका रीजन फॉर सिंपल एक पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा भी रूल कर रहे हैं। सेकंड रीजन इज ऑल्सो कि हम फॉग में खेलना पसंद नहीं कर रहे। बॉल जहां पर थोड़ा सा हिलनी शुरू हो जाती है। डोमेस्टिक में भी अब क्या प्रॉब्लम हो गया, पहले गेम्स होती थी, जैसे हिमाचल को जब मैचेस खेलने या दिल्ली को खेलने अपने ग्राउंड्स में,
आजकल सेंट्रलाइज कहीं जयपुर में खेलना शुरू कर देंगे, कहीं और खेलना शुरू कर देंगे। ये एक प्रॉब्लम हो रही है। जब आप डिफरेंट पिचेस पे नहीं खेलेंगे, जब अरूप आपको आदत ही नहीं होगी कि एक धर्मशाला में मैच खेलें, एक मोहाली में खेलें जहाँ फॉग होगी, या दिल्ली की उस फॉगी वेदर में आप खेलें, और देन यू गो टू विशाखापट्टनम एंड वेस्ट जहां पर आपको डिफरेंट कंडीशंस मिले, तो आप अपने आप को टेक्निकली एडजस्ट नहीं कर पाते। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आपको जो माइंड सेट है, आपको मैक्सिमम मैचेस पाटा विकेट्स पे वन, और दूसरा जो कहते हैं थोड़ा सा गर्म कंडीशंस में मिल रहा है, जहां पर बॉल कम स्विंग होगी या बॉल कम सीम करेगी, देन व्हाट हैपेंस इज यू सडनली गेट ए सिचुएशन लाइक मुंबई, जहां पर आप 117 पे आउट हो गए और बॉल सीम कर रही है। बॉल जब सीम और स्विंग कर रही है, जब आपको बॉल पहले भी हिल रही है और पढ़ने के बाद भी एक पर्टिकुलर जो अगर अगर अच्छा बॉलर है, अगर उसको पूरी सीम के साथ ले जा रहा है, तो खेलना मुश्किल है। इट्स नॉट दैट इजी। वो चाहे गावस्कर थे या रोहित शर्मा थे, हर एक के लिए मुश्किल होती है। इट इज नाउ अबाउट योर एडॉप्टेबिलिटी। आप उस कंडीशन से कैसे अडॉप्ट करेंगे। अब नाउ द प्रेशर इज सो मच। अब आपको अपनी मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो बैट्समैन है, वो दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर स्ट्राइक रेट, दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट उनका करियर जो स्टैटिस्टिक्स वो किस तरह की चल रहा है। कोई भी व्यक्ति 70 बॉल पर 30 रन नहीं बनाना चाह रहा है। If there is a condition like in Mumbai when where the ball was seaming or swinging, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आप 170 बनाइए ना, आपको जरूरी नहीं है 270 या 300 रन बनाने हैं। आप जाइए वहां पर, आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा सर को झुकाइए, और बॉल जब कर रही है उसको निकालिए। मे बी इफ यू आर एबल टू प्ले ऑल द 50 ओवर्स, मे बी यू विल बी समवेयर 175 to 200, सो प्ले विद दैट, क्योंकि उनके लिए भी वो मुश्किल हो सकता है विकेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब व्हेन यू हैव स्कोर्ड 117, उनके लिए बहुत इजी होगा। उन्होंने 11 ओवर में ही बनाकर आपको मार दिया। क्यों? क्योंकि उन पर प्रेशर ही नहीं था। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये एडॉप्टेबिलिटी है, आपको कैसे करनी है। और दूसरा, एवरी कंडीशन में आपको थोड़ा सा मूव करना बहुत जरूरी है, जो कि अभी लेटली बहुत कम हो रहा है। मैक्सिमम मैचेस आप जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट होते तो सभी मैचेस वानखेड़े में हो रहे हैं। जय शाह अभी डोमिनेट कर रहे थे, सभी वहां होंगे। जब कभी आईएस बिंद्रा थे तो मोहाली और दिल्ली में ज्यादा होते। तो ये सब एक प्रॉब्लम्स इंडियन क्रिकेट के साथ, डिस्पाइट रोटेशनल सिस्टम है, ये सब प्रॉब्लम है कि इन चीजों को हमें दरकिनार, मैं देखिए, इससे इससे हमें हमें इसको फेस करना पड़ता है। I, as a lover of the game, and this may sound a bit harsh, but I deliberately scribbled in my notes a couple of pointers, and I want to raise this pointer to you to get your reaction because it certainly bothers me. Like I said, and I want to qualify this. Absolutely, I love this game, and for a very long time, I've been watching this game, read about it, interacted with a lot of cricketers whom I can count as friends. Also, produced some cricket shows which were pretty well known. But coming back to the main point, sometimes one gets the impression that the modern cricketer doesn't care much. There's money in the IPL, there's money in the game. Many of them are millionaires in their mid 20s. The lifespan of a cricketer, and this is also a crucial point, is now could be barely 10 years with a ton of luck. Earlier, it was like a 15-year, 16-year career one could have. They are now more injury prone because of the demands of all the three formats on their bodies. And those playing in all the three formats at times struggle with technical adjustments. Now, when you look at all these pointers in a holistic manner, what do you think? And is there still any way to save this game to some extent where it doesn't lose its beauty? There's no doubt, Arup, that span of a cricketer has really gone down because of the pressure of playing in all the three formats. And despite injury, if you remember, there are so many examples without taking their names. They were not available for Team India, but they were available, after a week for, IPL. Hardik Pandya, in fact, India ODI captain, even he did this, a T20 captain in last IPL also. When he got fit, when he was not even half fit or he was not bowling, it was during that time. When he got fit, he came back into the team. Look at what performance he has done. When he was bowling like a champion. He was always a great batter. But the point is, are you lying to yourself? Are you trying to earn more at the cost of probably costing to your company, to your team? That is exactly what is happening. And second problem is with the NCA.
India has National Cricket Academy in Bangalore. Now VVS Lakshman is heading. Before that, Mr. Rahul Dravid was heading. But the problem is that has become more like not an academy but a hospital for rehabilitation. Every injured player goes there, and the coaches or the trainers जिस भी दिन उसको फिट करार देते हैं वो आता है फिर से टूट जाता है मतलब व्हाट इज देयर टू बेसिकली उसको हरी अप करने के लिए कि इसको खिलाना ही खिलाना है if somebody has got injured he should get enough rehabilitation time one and then there should be a condition that before playing now if you have got injured you can come back after playing one domestic but what is the necessity of only just playing one domestic. Make him play more practice matches, even if not domestic. Make him, get better and better. And by the time he comes back to your team, he should be 100% fit. But that is not happening. One is that also. And then money pressure, obviously. If you have been sold for 10 crores or 20 crores, then obviously you have to, it's a pro rata basis. It is not like Arup has gone for 10 crores to one franchisee. And if he doesn't play, he'll get all 10 crores. No, you'll only get that part. If you are playing all the matches, only then you will be, entitled to get the entire money. So that pressure is also there. It is not your contractual money. In contract, I would still say that BCCI is much better. That if they are paying you 7 crores for the A grade contract, they will pay you whatever happens, for that year. But in franchises, there is more pressure of playing. And that is why half fit player भी पूरा सीजन खेलता है पूरे 14 मैचेस 15 मैचेस खेल करके whether he is available for a team India or not, that is a separate issue. So before we wind down the show, I must come down to one point, which is a crucial point, which is that the next, after the IPL, going beyond that, the next big event is the ODI World Cup. And going by our performances in this recent 117, one of our lowest scores, certain questions are being raised that should there be a separate team? Should there be a separate coach? Do we have the right selection going on? So let's take a quick look back. And there were in the last ODI World Cup that we won, the last title was in 2011, which was in Mumbai under the captaincy of Dhoni. And previous to that, in 2007, the T20 World Cup was again under the captaincy of Dhoni when we beat Sri Lanka. We beat Pakistan at Joburg under his captaincy. And now the Scrap Champions Trophy in 2013 was also under his captaincy. So while quite a few players are saying, experts are saying that this is a good enough chance for India to win the World Cup, but someone like Michael Vaughan has made a comment, a pretty strong one, saying that England would be one of the best contenders, keeping in mind their batting attack, the ability to play spin, and both Jofra Archer and Mark Wood will be back to harass the batsman at the top and at the tail. So when you look at such a scenario, I won't ask you how good a chance we have of winning, but to get some of the nuts and bolts right, what should India do quickly? There's a lot of time, before that. We have experimented a lot. But the problem is कि हमने experiment जितना भी किया वो एक set of players के साथ किया. Not enough players have been tested. And that is a problem with the Indian selection pattern also. हमने जो 20, 22, 25 लोगों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट हम इशू करते हैं हम उसी के बीच में घूमते रहते हैं. We don't go out there and say कि ये डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है उसको नहीं खिलाते. बहुत कम चांसेस है. मतलब वी हैव डन दैट. ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आया, बट बहुत कम. सो इसको प्रेशर एक जो मैंने आपको कहा कि टॉप प्लेयर्स को खिलाने का प्रेशर है इज वन. बट सेकंड इज ड्यूरिंग दैट अक्टूबर नवंबर टाइम इफ यू सी वो जो विकेट्स होगी वो उस टाइम पर जो सीजन की बात करें आफ्टर बरसात वो काफी फ्रेश सीजन होता है. बाय अक्टूबर मे बी नवंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा टूटना शुरू होता है विकेट. उस टाइम पे फ्रेश विकेट्स होगी. एंड टू हैव फ्रेश विकेट्स अगर उसके साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें उस क्यूरेटर को एक अच्छी टीम अच्छी पिच बनाई जाए इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि जो हमारी स्ट्रेंथ है तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर बना पाएगा बजाय इसके कि राहुल द्रविड़ बताए या कोई और कप्तान आपको बताए किस तरह की विकेट चाहिए. हमारे ग्राउंड्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम है जब उनके अगेंस्ट आप चलना शुरू करते हैं उनसे घास कटवाना या उनको बताते हैं इस तरह से रोलिंग करो देन द प्रॉब्लम कम्स.
और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो आपने राहुल द्रविड़ की बात की, मुझे तो आज तक कभी समझ ही नहीं आया राहुल द्रविड़ को किस बेसिस पे वनडे लेटर ऑन खिलाया गया और किस बेसिस पे उनको कोच बनाया गया। वो खैर आईपीएल के प्रेशर्स होते हैं, वो वहां पर भी अगर आप देखें जब 2013 तक या 2014 तक वो राजस्थान के रॉयल्स के कप्तान भी थे, मुझे कभी समझ नहीं आया किस वजह से किए गए। ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स, उनको टेस्ट फॉर्मेट में इन्वॉल्व कीजिए, उनसे उनसे बच्चों की कोचिंग करवाइए। ही इज टू गुड ए कोच फॉर अंडर 19 और इंडिया ए, बट प्रॉब्ली एट इंडिया लेवल मुझे नहीं लगता कि वो ईगोज या जिस तरह के राहुल द्रविड़ है, थोड़ा सा जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, उनको टीम के साथ ज्यादा इन्वॉल्व और खासकर T20 और वनडे टीम के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। एनीवे, दैट्स माय ओपिनियन। और जो सबसे लास्ट बात है वो है जो डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात है। दिस इज द टाइम, अभी हमने बहुत सा क्रिकेट खेलना है। इस क्रिकेट को अगर हम देखें, अगर अभी से हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज करना शुरू कर दें और एक पर्टिकुलर 18-20 लोगों को हम सिर्फ वनडे के हिसाब से करें, उसमें से 5 या 6 ऐसे प्लेयर्स हों जो शायद टेस्ट और ना खेलते हो, तो शायद ज्यादा बेटर होगा। और एंड स्पेशली द ऑलराउंडर स्लॉट, वहां पर ये हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट क्या, हम उनको लगातार खिला सकते हैं बजाय इसके कि इन्हीं सेट प्लेयर्स को और टॉप प्लेयर्स को यहाँ पर लगातार खिलाने की हम प्रेशर में रहें। Right, so let's wind this show down. No filter cricket, and as it is very clear from this show that if India has to do well in the coming ODI World Cup, it has to have a separate team. It has to make certain changes in its own setup, where the team component is concerned. Might be even look for a separate coach if possible, but I don't see that happening in this short duration leading up to the ODI World Cup. So Rahul Dravid will be there. But like CS is saying, have a set of about 18 odd players who only stick to ODI, only stick to that format, and then juggle them around and keep the pitch conditions in mind. So we'll wait for the ODI World Cup, which is still a distance away. Before that, the IPL hoopla will begin. But this point about the lowest totals ever gives you a lesson. So when a team does badly, there are lessons to be learned, and it's high time those lessons were learned, hopefully. Thanks for watching. Please send us your opinion, your comments, and we look forward to them. Thank you, CS. See you soon. Thank you. Always a pleasure. Thank you.